کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ 15 ہمیں باڈیز ریکور ہوئی ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 65 ابھی ہم نے لیٹسٹ نمبرز دیے جو 1 بجے کے ہیں، 65 یعنی 65 لوگ مسنگ ہیں، جو رپورٹ کیے گئے ہیں کہ کل پلازا کی طرف آئے ہوئے تھے ان کے فیملی والوں کی طرف سے، تو ٹوٹل 80 کے قریب لوگ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ مراد علی شاہ کا نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 2 دن پہلے انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ واقعے کے ذمہ داروں کا جلد پتہ لگایا جائے گا۔ گل پلازا شاپنگ مال ہے جہاں ہم سب جا چکے ہیں۔ گل پلازا شاپنگ مال میں 1200 سے زائد دکانیں ہیں، اربوں روپے کا نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ گل پلازا میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ہمارے 1122 والے KMC والے جو ریسکیو کے لوگ ہیں وہ سب کوشش کر رہے ہیں عمارت کے اندر، جیسے میں نے بتایا کہ 3 ڈفرینٹ جگہیں ہیں جہاں سے انہوں نے انٹر کیا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو بچایا ہوا ہے ابھی تک وہ بھی ملے، اور جو لوگ اگر اس واقعے میں اپنی جان گنوا چکے ہیں ان کی باڈیز بھی ریکور کی جائیں تاکہ ان کے خاندان والوں کو کچھ ان کے غم میں کچھ کمی ہو۔ ہم سب غمگین ہیں، ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں کل رات کو گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک فائر فائٹر فرقان وہ بھی شہید ہوا ہے، اور مجھے آج بتایا گیا ہے صبح کہ اس کے والد بھی فائر فائٹر تھے اور وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اس کی کچھ دنوں پہلے ہی شادی بھی ہوئی تھی، اور میئر صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اوبیسلی اس کا دیکھیں گے ان کی فیملی کو۔ آج صبح میں نے ایک میٹنگ کی تھی، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے بزنس کمیونٹی کے، کراچی چیمبر کے ہمارے دوست ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان سے صلاح مشورہ کیا۔ ہمارے وزراء تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے کہ ہم نے امیڈیٹ کیا سٹیپ کرنے ہیں، انٹرمیڈیٹ ٹائم پہ ہم نے کیا کرنے، اور لانگ ٹرم ہم نے کیا سوچنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا غور و فکر کیا۔ امیڈیٹلی تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ ہم جو اس وقت کام چل رہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ جو بھی مسنگ لوگ ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہو جائے، جو اس وقت 65 جو میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، اس سلسلے میں ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ میڈیا کی توسط سے اس لیے باتیں میں بہت سن رہا ہوں، میں ہر اس ادارے کو جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے ہماری مدد کرنے کے لیے، اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے، اس لیے کہ کئی باتیں کی جا رہی کہ جی فلانے کو بلا لیا جاتا، ان کو بلا لیا جاتا۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ جی اس ایسے موقع پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سامنے آنا پڑتا ہے، وہ لوگ آئیں اور مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کابینہ کے وزراء سے، اور ہم نے کنسلٹ کیا بزنس کمیونٹی کو بھی، جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں، ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے، اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا جیسے جیسے وہ کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اور میں نے کمشنر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے ڈیٹیلز لے کے
اور وہ ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں امیڈیٹ ٹو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی کھو چکے, بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ان کو بھی کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد. پہلے بھی کراچی میں واقعات ہوئے ہیں, پورے صوبے میں واقعات ہوئے اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں. بولٹن مارکیٹ میں آپ کو یاد ہوگا سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد. پہلے بھی کراچی میں واقعات ہوئے ہیں, پورے صوبے میں واقعات ہوئے اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں. بولٹن مارکیٹ میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت صدرائی تھی, اور ہم نے اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہا تھا کہ ہماری مدد کریں, اور انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو افیکٹیز تھے ان کو کمپنسیٹ کیا تھا, اور وہ کچھ عرصے میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہوئے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا دکھ بلایا ہوگا, لیکن وہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی, اس سلسلے میں بھی حکومت سندھ نے یہ اقدار کیا تھا. اور مور ریسنٹلی خیر کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نقصان ہوا تھا, اور اس میں تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے بولٹن مارکیٹ سے, اس لیے کہ جو انیشلی ایسٹیمیٹ تھا, جب لوگ خود سامنے آئے انہوں نے اپنے صحیح نقصانات بتائے, اور وہ جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی اس سے کم تھے. تو تقریباً 330 کروڑ روپے بچ گئے تھے, مجھے اگر نمبر یاد ہے صحیح. تو وہ پھر ہم نے وہ پیسے استعمال کیے تھے کوآپریٹو مارکیٹ میں. 30 ملین تھے, 33 کروڑ وہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ وفاقی حکومت سے اجازت لے کے کوآپریٹو مارکیٹ والوں کو کمپنسیٹ کیا تھا. تو حکومت سندھ کی طرف سے میں یہ کرتا ہوں, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا لی, اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اسسٹ حکومت کرے گی, لیکن ایک کمیٹی مجھے کمشنر صاحب نے ابھی بزنس کمیونٹی سے ہی نام لے کے دیے ہیں, نہیں یار ادھر ہیں, جس میں آپ سے شاید کنسلٹ کیا ہے زبیر موتی والا صاحب, وہ غالباً عمرے پہ گئے ہوئے ادھر نہیں ہیں. جاوید بلوانی صاحب, ادریس میمن صاحب, جنید ماگدہ صاحب اور ریحان حنیف صاحب, یہ مل کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو لوگوں کا لاس ہے وہ اسیس کریں گے, اور حکومت سندھ ان کو اسسٹ کرے گی. میں نے ناصر شاہ صاحب ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ اور میئر کراچی پلس کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ وہ اسسٹ کریں اس ٹیم کو, تاکہ جلد سے جلد ہم ان لوگوں کو وہ کمپنسیٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ڈسکشنز کی کہ ٹیمپری طور پہ ہی صحیح, یہ تقریباً 1000 سے 1200 کے قریب دکانیں تھیں, اب ایگزیکٹلی تو نمبر مل جائے گا. ان دکانوں کو کہیں اور جگہ دی جائے تاکہ اپنا کاروبار کر سکیں. ہمیں کہا گیا کہ ایک بلڈنگ ایڈجیسنٹ ہے, لیکن ابھی میں نے پتہ کیا کہ نہیں وہ آکیپائڈ ہے. پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ خالی ہے. کچھ ایک آدھ بلڈنگس کو اور پتہ چلا ہے, ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں امیڈیٹلی, تاکہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے اور یہ اپنا کاروبار دوبارہ سٹارٹ کریں. امیڈیٹ اور میڈیم ٹرم میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو, تو اس کے لیے جو جلدی سے ہم کام کر سکتے ہیں, اور میں شکر گزار ہوں جاوید بلوانی صاحب کا, باقی ساری جو ہمارے ان کے ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ ہم سارے اپنے ممبرز جو ہیں شاپ کیپرز ایسوسیشنز ہیں ان کو بلا کے کہیں گے کہ امیڈیٹلی وہ فائر الارمز وغیرہ تو انسٹال کریں, تاکہ یہ اگر اس قسم کی آگ لگتی تو پہلا 1-2 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو کرنا ہوتا ہے آگ نے کرنا ہوتا ہے, انسان بس وہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑا یہ بلڈنگ کچھ اس طریقے کی تھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. اگین میں وہ بتاؤں گا کہ اب اس کو ہم کیسے اسیس کریں گے کہ ایکچولی ہوا کیا, کہ آگ بجھانے میں ابھی تک اس وقت ایز آئی اسپیک ابھی بھی کہتے ہیں 10% اسٹنگوش نہیں ہوئی آگ پوری. کہیں سے بجھتی ہے تو وہ کہیں اور سے شروع ہو جاتی ہے, اور ایکسیس نہیں ہے پراپر
बिल्डिंग ऐसी हालत में है कि वहाँ तक पहुँच सकें, तो वो जो है फायर अलार्म्स ये लगाएंगे। उसके साथ साथ इमीडिएटली जो हम अपने इदारों के अंदर इंटरवेंशंस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो एक प्लान है कि हम करें। मुझे मुर्तज़ा साहब ने एक रिपोर्ट भी दी थी, अभी मेरे पास नहीं है, आपने प्रिंट आउट लिया मुर्तज़ा? नहीं, अगर है तो वो दें। वो जो फायर सेफ्टी ऑडिट 2004 में किया था, उस पर इमीडिएटली 24 में, सॉरी, हाँ 2024 में किया था, उस पर इमीडिएटली हम काम इन्फोर्स करें। और मैं बिज़नेस कम्युनिटी से कहूँगा कि वो ज़रूर अपनी शॉपकीपर्स एसोसिएशन और सारे दुकानों से कहें कि उस ऑडिट के अंदर जो उनकी तरफ से काम होना है वो इमीडिएटली किया जाए, और जो गवर्नमेंट की तरफ से काम होना है वो भी हम बिल्कुल तेज़ी से करेंगे। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म हमने सोचना होगा कि इसको कैसे पूरा करना है। एक तो हाँ, एक चीज़ रह गई मेरी, ये फायर ऑडिट है जो 2024 का हुआ था, इसमें तकरीबन ये 35 सफ़े का था, मैं देखा, और 145 इमारतों का फायर ऑडिट है जिसमें जो जो उन्होंने काम करना है वो लिखा हुआ है। इस पर इंशाल्लाह इमीडिएटली हम कर लेंगे। इस वाक़े की एक इंक्वायरी हम सेटअप कर रहे हैं कमिश्नर कराची की सरबराही में, और उनको एडिशनल आईजी कराची असिस्ट करेंगे। उसके साथ साथ हमने उन्हें कहा है कि वो कोऑप्ट करें और मेंबर्स, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी होंगे, और भी कोई अगर कोई भी इदारा, एक इधर बात हुई कि जो लाहौर में फॉरेंसिक साइंसेस का इदारा है, हम उनको लिखेंगे भी, और इस मीडिया के थ्रू उनसे दरख्वास्त भी है कि अगर हमारी मदद कर सकें देखने के लिए कि कैसे फायर स्टार्ट हुआ। ये इंक्वायरी मैंने बड़ी क्लियरली कहा है, ये किसी के पीछे पड़ने वाली नहीं होगी कि जी एक और पेंडोरस बॉक्स खोल दें कि जी इस फलाने दुकान वाले का कसूर था या इस अफसर ने ये नहीं किया और हम फिर इसको लंबा खींचें। इस तरीके की इंक्वायरी नहीं होगी। हम गलतियाँ अपनी जिसकी भी हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको दुरुस्त करें। हाँ, बड़ा क्लियरली कहा, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि इसमें कोई तखरीब कारी है तो ऑब्वियसली उस पर तो एक्शन लेना होगा, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो एक्शन लेंगे। अदरवाइज़ ये इंक्वायरी बेसिकली हम टारगेट करेंगे अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए। वो गलती मेरी हो सकती है, किसी इदारे की हो सकती है, उधर की जो शॉपकीपर्स हैं उनकी हो सकती है, चाहे जिसकी भी हो। मैं आगे नहीं इसको फर्दर एलैबोरेट करूँगा, जिसकी भी हो, ताकि अल्लाह न करे ऐसे वाक़यात दोबारा हो तो हम उन गलतियों से सीखें और ऐसा नुकसान ना हो। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम कॉम्पनसेशन का ऐलान करते हैं, करोड़ रुपया जो डेथ्स हुई हैं उनकी। उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन ऑफ द शॉपकीपर्स, वो जो थे उनका जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, और उनको जल्द से जल्द वापस अपने पाँव पे खड़े होने के लिए जो इक़दाम करने हैं और हमने साथ मिल के करना है, उस पर हम काम करना चाहते हैं। हम इमीडिएट जो हम कर सकते हैं फायर सेफ्टी या डिज़ास्टर सेफ्टी के लिए स्टेप्स, उनको लिस्ट करके हम कर लेंगे। हम एक इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं जो कि वजूहात बताएगी, गलतियां बताएगी, और उस पर हम काम करेंगे। हम लॉन्ग टर्म भी अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारों को इक्विप करेंगे। मेरी दरख्वास्त आप सबसे यही है, ये एक अफसोसनाक वाक़या, एक सानिया है। इसको जितना मेरी आपसे, वैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, दरख्वास्त है, मीडिया से यही दरख्वास्त होगी कि, और मैं तो उठते ही कह रहा हूँ कि जी हाँ गलतियाँ हैं, लेकिन ये कह देना कि जी मेरी गलती है या आपकी गलती है या इसकी गलती है, वो अभी डिटर्मिन नहीं कर सकता। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इमीडिएटली बता दूं किस किस की क्या क्या गलती है। वो इंक्वायरी बताएगी और उस पर जो है सज़ाएँ ज़रूर होंगी,
लेकिन हाउंडिंग नहीं होगी कि जी किसी को स्केप कोड बनाना, किसी को कहना कि जी इसकी वजह से ये सारा वो हम सबकी। एक और चीज़ें मैं जो कहना चाहता हूँ, पता नहीं मैं कहूँ आप लोग उसको गलत लें या सही लें, जो एक मैंने देखा इस पूरे वाक़े में, मैं कल कराची में नहीं था, कराची से बाहर था, मैं कुछ 3:30-4 बजे वापस कराची पहुँचा था, लेकिन मैं सुबह मेरे ख्याल रात को भी लेट तक कुछ 12:30-1 बजे तक मैं कॉन्ट सुबह मैं उठते ही 7 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब से कांटेक्ट में था। चीफ सेक्रेटरी साहब पहुंचे हुए थे उधर साइड पे और जो भी कर सक रहा था वो कर रहे थे। जो हमने प्रॉब्लम्स देखे जो बड़ी आसानी से दुरुस्त हो सकते हैं, उसमें हमारी भी कोताही है, मैं कहूँगा कि उस कोताही को दूर करना होगा। ऐसी जगहों को प्रॉपरली कॉर्डन ऑफ किया जाता है ताकि जो भी हमारे पास मौजूद है रेस्क्यू के इदारे वो फ्रीली अपना काम कर सके। अगर उन्हीं को हिंडर किया जाएगा और हर एक अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने पहुंच जाएगा तो वो काम नहीं होगा। तो एक रिक्वेस्ट आप सबकी तवज्जो से भी है कि ऐसे वक्तों में आप खुद मीडिया वाले भी अगर ये कहें कि जी सबसे पहले तो एक्सेस तो देना प्रॉपर, ताकि उधर लोग पहुंच सके, हर एक आदमी अपनी एक्सपर्टीज़ ना जाहिर करे, जिन लोगों का काम है वो ज़रूर पहले करें। हाँ, गलतियाँ आप पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन वो उसी वक्त ये बड़ा एक ऐसा सानिया था जिस पे बहुत चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए थी हमने की। कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त ही होगी कि इसको एक्सप्लॉइट ना करें। मैंने किसी को नहीं कहा कि जी फलाने ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये करना चाहिए। बहुत चीज़ें मैं भी बता सकता हूँ कि किसने क्या क्या करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी तरफ सारी उंगलियां उठा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या करना चाहिए था जो मैं नहीं कर सका, और जिन वजूहात पे वो वजूहात भी नहीं बता रहा आपको, लेकिन एक चीज़ तो बता रहा हूँ कि उस हिंड्रेंस में हम सब मुलविस थे जो इस कमरे में बैठे हैं। और जावेद भाई मेरे से फुली एग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे। हम हाँ, अगर किसी की नीयत बुरी है उस पे आपके, लेकिन ये इल्ज़ाम मेरा ख्याल है आप किसी हुकूमत सिंध के नुमाइंदे को, इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं, होती हैं, दुनिया भर में इंसान करता है जो गलतियां करता है। हम हर चीज़ नहीं जानते कि क्या जो है करना चाहिए, ये करना चाहिए था। रिट्रोस्पेक्ट तो बहुत बातें याद आती हैं कि ये कर लेते। तो हाँ, गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हमने इस साने के जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टीज हैं उनके साथ खड़ा होना है अभी, और हुकूमत सिंध पूरी तरीके से उन अफेक्टीज के साथ खड़े होने के लिए आपको यकीन दहानी कराती है। मैंने कहा है कि हमारे वुज़रा जो लोग जिनकी डेथ्स कंफर्म हो गई हैं या जिनके मिसिंग लोग हैं उनको घरों पे विज़िट करेंगे ताकि उनका दुख बांट सकें, उनके साथ हमदर्दी कर सके। ये कुछ चीज़ें मैंने कहनी थी। जावेद भाई अगर आप, इसलिए कि आप कह रहे थे अगर आप भी कुछ कहना चाहें इस सिलसिले में तो आप बता दें, फिर हम सवालात भी ले लेते हैं आपसे कुछ। मैं थैंक यू कहूँगा सर, शुक्रिया आपका कि सिंध गवर्नमेंट जिस तरह हमारे साथ खड़ी है उससे जो है हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, और पहले भी सिंध गवर्नमेंट खड़ी रही है, मगर जिस तरह फ़ौरन सीएम साहब ने कल आए, विज़िट किया और बोला कि हम कल ही मीटिंग करेंगे और फ़ौरन इस पर एक्शन लेना है, और जो बातें की सीएम साहब ने मैं उसको सेकंड करूंगा क्योंकि इन्होंने सब बातें सही की जो हम चाहते थे। और एक बात मैं ऐड करूंगा कि मीडिया से जो सीएम साहब कहना चाह रहे थे, जो मैं समझा हूँ कि मीडिया को भी उस वक़्त यही किरदार अदा करना चाहिए कि इस वक्त इस मसले को कैसे हल करें। एक दफ़ा का सर मैं थोड़ा सा किस्सा सुना दूँ। आज से 5 साल पहले साइड में कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट की फैक्ट्री में आग लगी और मैं शाम को जा रहा था फैक्ट्री से, तो वहाँ वापस पता चला आग पे किया, तो मीडिया सब वहाँ आ गया था। मैंने मीडिया से उधर कहा कि आप अभी रुक जाएं, आप आग बुझाने में हमारी मदद करें,
اور اللہ کے فضل سے وہ آگ جو ہے 2-3 گھنٹے میں بجھ گئی. پھر اس کے بعد میڈیا سے میں نے کہا کہ اب آپ بات کریں, اور میڈیا نے ادھر اس وقت یہی ہیلپ کی. آگ بجھانے کے لیے میڈیا میں یہ چلایا کہ ٹینکرز یہاں بھیجیں, ہماری ٹینکرز والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پانی کے ٹینکر یہاں بھیجیں. انہوں نے پازیٹیو کام کرنا شروع کیا. تو سی ایم صاحب بھی ابھی میں سمجھ رہا ہوں یہی میسج میڈیا کو دینا چاہ رہے تھے کہ بھئی جب ایسا حادثہ ہوا تو وہ ہمارے ملک کا حادثہ ہے, ہمارے شہر کا حادثہ ہے, ہمارے بھائیوں کا نقصان ہے, تو ہم سب مل کے اس مسئلے کو حل کریں, اس کے دکھ میں شامل ہوں, اس کی مدد کریں, اور مدد کرنے کے بعد پھر ہم جو آگے کی پلاننگ جو ہماری غلطیاں ہیں چاہے گورنمنٹ کی طرف سے چاہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے, اس کو صحیح کرنے کے راستے ڈھونڈیں, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم. سر میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور بہت اچھی بات ہوئی. ختم تو کرنے دیں یار, ختم کرنے دیں. ایک منٹ بھائی, ختم کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, بالکل صحیح بات کی. اور آپ نے جو بات کی کہ جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ فائر الارم ہے. کسی مارکیٹ کے اندر اگر فائر الارم بج گیا تو اس مارکیٹ کے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گی یہ فائر الارم بج رہا ہے, تو یہاں سے نکلو باہر. اور وہی آدھا گھنٹہ 15 منٹ جیسے آپ نے بات کی, 2 گھنٹے کے بعد تو معاملات چینج ہو جاتے ہیں. اگر 15 منٹ میں وہ 20 منٹ میں باہر نکل گئے تو کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا. اور کراچی چیمبر جو ہے سر, کراچی کی جتنی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں اس کے اندر فائر الارم اور فائر سیفٹی کے اویئرنیس پروگرام انڈیویجول مارکیٹوں میں کرائے گی. یہ ابھی ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور جیسے آپ نے باتیں ہمیں کی, ہم نہیں گئے سی ایم ہاؤس سے, ہم نے بولا جب کام کرنا ہی ہے تو ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. باہر ہم بیٹھ گئے ویٹنگ ایریا میں, اور ہم نے کافی چیزیں ڈیسائیڈ کی کہ جو کنسٹرکٹیو کام ہو اس کو فوراً کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں اور کس طرح کریں گے. دیکھیں یہی راستہ ہے, ہم سب کا شہر ہے, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہر آدمی سے ایک انسان غلطی کا پتلا ہے, مگر ہم کو ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے. مگر کس ٹائم پہ صحیح کرنا ہے, جس وقت ایمرجنسی ہے اس ٹائم پہ تو ہم کو لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, اس معاملے کو صحیح کرنا ہے. اس کے بعد کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں ہیں ان میں اب یہ چیزیں ان کو کس طرح صحیح کرنا ہے. تو یہ تو کنسٹرکٹیو کام ہے. ایک کام ڈسٹرکٹیو ہے کہ ابھی ایک آدمی الجھا ہوا ہے اور پریشان ہے, اس کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی, ہم اسے پوچھیں کیسے آگ لگ گئی, کیوں آگ لگ گئی, وہ بولے یار میں تو ابھی مصیبت میں ہوں, میری مدد کرنے کے بجائے, جیسے اللہ معاف کرے ہم اپنے یہاں رشتہ داروں میں موتا ہو جاتی ہے تو لوگ دعا کرنے کے پہلے کئی لوگ ایسے آتے ہیں کیوں انتقال ہو گیا, کتنے بجے انتقال ہو گیا, کس سے آخری بات کی. اس بیچارے کے اوپر اتنی مصیبت ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں. اور ایک آدمی آگے بولتا ہے اللہ صبر دے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو اس کے اندر حوصلہ آتا ہے کہ یار صبر کی باتیں کر رہے ہیں, آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ کے صدر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں صبح سے, وہ بھی ہمارے ساتھ صبح سے میٹنگ میں ساتھ ہیں. ہم سینئر سارے فارمر پریزیڈنٹ, وائس چیئرمین, سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر, اور ہم نے سب نے صبح سے میٹنگیں کی اور لوگوں سے بھی بات کی, ڈسکس کیا کہ یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں, آپ لوگ کیا کہتے ہیں. سب نے ہمیں یہ کہا کہ بالکل صحیح ٹریک پہ آپ جا رہے ہو, اور انشاءاللہ آگے مستقبل کے اندر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب کوئی کیجولیٹی ہم نے طے کر لیا ہے کہ کراچی کے اندر کیا سندھ کے اندر ہم ایسا کام کریں گے کہ کیجولیٹی کسی بھی مارکیٹ میں نہیں. سعید کر لے گا گائیڈ سب کو نا, اور آرام سے میں بیٹھا ہوں. میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں ہوئی ہیں نا اسی کی طرف چلیں, اور پازیٹیو نہیں, آپ بھلے نیگیٹو تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, آپ دل پہ نہ لیں کوئی چیز اپنے. ہاں
लियानी में जो वाक्य हुआ आपने देखा, इतने सारे लोग उसमें फॉलो हो गए, डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटाया गया। क्या कोई क्वेरी हुई? क्या एक दिन हमें ये खबर लगी कि वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके वो साहब जो डीजी बिल्डिंग कंट्रोल थे वो दोबारा बहाल भी हो गए, पहले भी 3 दफा रह चुके हैं, तो अब भी इस किस्म का कोई वाक्य होगा? और नहीं, कोई ऐसे बाल नहीं। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुस्तकबिल में वाकई ऐसी हो। नहीं कामरान, चंद दिनों के कि बाद कामरान करने वालों के लिए कामरान एक तो आपके फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है, मैं कह देता हूँ वो बहाल नहीं हुआ, नहीं कोई बिल्डिंग कंट्रोल में नहीं लगा। उसके बाद मुझे तो पता नहीं, अभी ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है। नंबर 1, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि ये सब हमने करना है, और यही बात तो मैंने की ना, मैंने जैसे कहा कि शॉर्ट टर्म और सबसे बिल्कुल जिनके जिनके लोगों की डेथ हुई उन ख़ानदानों के साथ, और मैंने बताया कॉम्पनसेशन अगेन एक छोटा सा ज़रिया है उनको उनकी कुछ दुख का इजाला करने का है, और उसके साथ साथ हम अपने काबीना के लोग भी जाएंगे उनके पास ताकि उनमें के दुख में शरीक हों। और बाकी जो आपने सारी बात की, मेरे से ज़्यादा पहले जावेद बिलवानी साहब ने कहा कि हम अपनी सारी एसोसिएशंस को बुला के और जो जो चीज़ें उन्होंने करनी है हम उनसे कराएंगे, और ये हम एक पार्टनरशिप में करेंगे बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंशाल्लाह, जो आपने बातें की हैं। जो है वो जैसे आज इस मार्केट में सर ये कैसे, ये तो अभी आपने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि यूं शॉप में दुकान में आग लगे और यूं गुजर जाए कि पूरे का पूरा जो है ऊपर कर जाए? तो ये इस किस्म का कोई मादा देखिए, कोई और चीज थी? मैं अगेन अगर मुझे ये सारी पता होती तो मुझे इंक्वायरी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अभी बता देता आपको सारा। ज़रूर इसकी वजूहत होंगे, काफ़ी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है कि यहाँ पे बच्चों के खिलौने थे, काफ़ी उनमें वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, वो बड़ी इन्फ्लेमेबल हो, लेकिन अगेन ये सारी बातें हैं, अभी एक्चुअल इंक्वायरी के अंदर ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी। तो कैसे मुमकिन नहीं, कुछ तो था ना जिस वजह से ये हुआ, और हमने वो उसके पीछे जाना है। कंपनसेशन का ऐलान किया जाता है और फायर सेफ्टी ऑडिट की बातें होती हैं, हालांकि कई दफ़ा पहले भी हो चुका है। अब आप बता दें कि इससे कब वाक़यात में कितनी लोगों को जो है ना आइडेंटिफाई किया गया और क्या क्या सजाएं दी गई, कितने लोगों को मुअत्तल किया गया, और इस ताने के हवाले से ये मुतालबा बार बार दोहराया जाता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो क्या सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे, अगर हमें लगा कि हमें इंक्वायरी में दिक्कत पेश आ रही है, तो अगर जुडिशरी से मदद लेनी होगी तो हम बिल्कुल लेंगे, नंबर 1। सेकेंडली, जो पिछले वाक़यात हुए हैं, आपने कहा ये होते हैं, अकरम मुझे बता दें, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो तो क्या आपको एतमाद में ना लिया जाए मीडिया को? तो आप कहते हैं तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करे कि ऐसे वाक़यात ना हो, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये स्टेप ज़रूर लिए जाते हैं। और जो आपने बात कही, जो पिछले वाक़यात हैं उनमें लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं। कहीं मैं फिर से कहता हूँ कि कई जगह ऐसा होता है कि गलती करने वाला सरकार तो होती है, लेकिन उसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ना करें, काफ़ी सारी उन शॉपकीपर्स की भी एक ज़िम्मेदारी होती है, वो नहीं हुई पूरी। लेकिन इस वक्त मैं उनको ब्लेम करना शुरू करूं जो इस वक्त तकलीफ़ में है तो मुनासिब भी नहीं है। हाँ, हम लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने कहा कि हम ये बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलके, और जावेद भाई ने ये एक इदारा अपना अहद किया है कि जी इंशाअल्लाह ताला कोई जान नहीं जाएगी किसी इस किस्म के वाक़े में, इसकी तरफ हमें काम करना चाहिए मिलके।
वाले माफिया हो या ये की माफी या का वाक्य माफी, मतलब ये कि पेड गवर्नेंस की अगर हम जड़ करते हैं तो पेड गवर्नेंस है, आपके अफसरान काम नहीं करते, आपके इदारे काम नहीं करते, प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं होती, और ये ताजे हजरात की जो है इनकी भी कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी अपने आप को नहीं होती। हम मैं तो ख़त्म करो ना एक सवाल है। अच्छा अच्छा, देखिए ये वाक़यात होते हैं गलती, जैसे मैंने तो कहा ना कि मैं हुकूमत की तरफ से एतराफ़ कर रहा हूँ। हम सबको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, बहुत ही एहतराम के साथ हर इदारे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं मान रहा हूँ और मैं अकाउंटेबल हूँ, लोगों के सामने अकाउंटेबल हूँ। हमारा तो तरीका है, सियासतदान का तो एक तरीका है अकाउंटेबल होने का। जो इदारे अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से ऊपर समझते हैं उनका भी कुछ फर्ज है कि अपने गिरेबान में झांके और इस तरीके का इंतशार ना फैलाए करें जो फैला देते हैं कभी कभी। एक सेकंड भाई, वो सईद बता रहे हैं। जी मैं जवाब दे दूंगा इसका भी। यार मेरा ये ख्याल है हमें और मेहनत करनी चाहिए। मैं किसी और के ऊपर नहीं डालूंगा कि किसी ने क्या किया, हम अपने आप को और बेहतर करें और वो हम उसी पे जाएंगे। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि फ़लानी जगह ये हो जाता है, ये बहुत वाक़यात हैं, ये आप लोगों का काम है ये चीज़ें करना। मेरा काम है अपनी कारकर्दगी को और बेहतर करने की कोशिश करना और अल्लाह ताला से मदद लेना इस चीज़ में। ये वो एक सवाल था कि यार भाई मैं इसका जवाब दे चुका हूँ ना। वो सवाल वही कि हाँ वाक़यात हुए हैं, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन हमें तैयारी तो दुनिया भर में वाक़या अगेन होते हैं। जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया उसमें जहाँ हमारी कोताही हुई है उससे हमें बेहतरी की तरफ जाना है, उस पर काम करना है। आई एग्री, मैं आपकी दोनों चीज़ों से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। पहले जो आपने बात की कि हुकूमत ने ई चालान किए, उसमें भी तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई और शायद हमारे कुछ दोस्तों ने कह भी दिया कि मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, ये चीज़ है, मतलब इसका तो बड़ा आसान हल है ना यार, सीट बेल्ट बांधो, नहीं लगे चालान, मुझे इस पर क्या परेशानी है, मतलब हल आपके पास खुद ही है। इस तरीके से ज़रूर जैसे आपने कहा कि पुलिस का ये काम था कि इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ करते, लेकिन हमारे जो एक कल्चर और माहौल बना हुआ है ना, मेरे ख्याल है आप नहीं लेकिन आप ही के कुछ साथी उसको बुरा मनाते और फिर वो शुरू हो जाते। हम सबसे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा डर हमें वो जो काला डब्बा है ना हमारे घरों में लगा, पहले ब्लैक बॉक्स, अब तो पतली स्क्रीनें हो गई हैं, उनसे बहुत डरने लगे। मैं बड़ी कैंडिडली बता रहा हूँ आपको, हम सब, कि यार इसमें कोई गलत बात ना आ जाए, बस फलाने को, ये चीज़ जो है ना, मैं अपनी
गलती बता रहा हूँ कि हाँ हम डरते, मैं कम डरता हूँ वैसे बाकियों से, इसलिए आप लोग जो कहते हैं मैं कहता हूँ कहते रहो। लेकिन एक सेकंड में ख़त्म कर लूँ यार आजिज़, ऐसा ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल है, आप मानता हूँ। इसीलिए आज जब हम बैठे थे सुबह, हमने यही कहा कि जी ये काम था और हम आगे से ऑर्डर्स देंगे कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात तो फिर भी कोई नहीं करेगा, हम आरआरएफ टाइप की फोर्सेस को उधर खड़ा करेंगे ताकि वो कॉर्डन ऑफ हो। और जैसे कहा गया, जैसे ये आग का मामला था, तो सबसे पहले तो आग बुझाने की बात की जाए, मजीद आग लगाने की बात ना की जाए, कहीं इस चीज़ पे बात करें। ठीक, सईद कर रहा है आज, सईद कह रहा है वो सबको दे दे के बारे में। हाँ जी ताहिर साहब, सॉरी, अच्छा वो अब देखें, ये मुझे भी ये पता चल गया था, ये खुद ही बता रहे हैं। एक सेकंड में इधर ताहिर भाई रोक रहा हूँ। दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन, सेइंग थिंग्स विदाउट कन्फर्मेशन। मुझे कल ही पता, ये किसी ने, ये मैंने मीडिया पे पढ़ लिया था, सोशल मीडिया पे, अभी इन्होंने कंफर्म कर दिया। मैंने इसकी ओनर की वो मंगाई, वो कोई और नाम है, वो है ही नहीं, अलग अलग ओनर है, लेकिन मैं एक ही नहीं छोड़ दी और सारे ढोल बजाते हुए उसके पीछे चल पड़े। इस चीज़ से, इसी से तो, और मैं भी उसमें, मतलब मैं किसी और को नहीं, मैं खुद भी बगैर किए हुए कंफर्मेशन, हम जो बात, तो ये बात इधर गलत हो जाती है। जी दूसरा सवाल था आपका। ये मुझे नहीं पता, ये देखना पड़ेगा मुझे, अगर आप, मुझे नहीं पता। सर्दियों में तो होते हैं सिलेंडर, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं नोट किया। हाँ पता करना पड़ेगा ना ये इंक्वायरी। अच्छा माँ सिंधी में जवाब दिया जाए ना, जो उर्दू में दूँ जवाब। ये मेरी बात सुने, मेरा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं यही कहूँगा, मुझे सिंध के लोगों जिनका मैं जवाबदार हूँ, हाँ असेंबली में मैं जवाबदार हूँ, ठीक है, उनका भी जवाब दूंगा, मैं उनके भी सामने एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जवाबदार हूँ, दूंगा। लेकिन अपनी तरफ से बना लेना, मैंने नहीं सुनी, मैं सिर्फ आपके कहने पे जो आप कह रहे हैं ना, मैंने नहीं सुनी उनकी, उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली। लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि उनका तो काम ही शायद ये है ना, और इस वक्त पे ख़ास तौर पे अगर वो मेरे से ये सवाल करते ना कि आप कैसे इन लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं ये बताएं, तो मुझे खुशी होती कि ये अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं, इंस्टेड के ये कहना कि वो जाली था ये असली है, फलाना है, असली जाली कौन है दुनिया जानती है। यही जवाब मैं दे सकता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं यार बात सुनो, इधर खुल के बात कर रहे हैं, एक मिनट अब्बासी साहब, नहीं सवाल इसका भी जवाब दूं। यार बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, आप लोग जिस तरीके से करते, मैं तो हंस हंस के आपको कोशिश करता हूँ कि दूं। आज तक किस मीडिया वाले को मैंने कुछ कहा है, एक हाँ यार अब मेरे छोड़े ऑफ कैमरा कहूँगी आपको, इसलिए कि ये लाइटर वेन में जारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए इधर, इसलिए कि ऐसा सानिया है कि हमने उस तरीके से उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। और जो ये कहना मेरा ख्याल है गलत नहीं कि हर एक अपना एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करे, ये चीज़ क्या बुरी है कहना? अगर बुरी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उसको। मैं वो चेक कराता हूँ, ये रिपोर्ट केएमसी की थी और मेयर साहब से पूछेंगे कि क्यों नहीं हुई उस पर और क्या पेशरफ्त हुई है, इस रिपोर्ट पे क्यों नहीं अमल दरामद हुआ, वो
वो बाद में बता दीजिएगा आप। शाह साहब अब्दुल जब्बार नासिर जान करता है। शाह साहब वाकयात हादसात सांघात होते हैं, लेकिन हम जब वहाँ गए तो लोगों का गुस्सा 3-4 बातों पे। एक भी है कि ये अपना मार्केट के सदर साहब बैठे हैं, वहाँ लोगों का ये कहना था कि आग लगने के 1.5 से 2 घंटे बाद वहाँ पर फाइटर्स आए हैं। दूसरा उनका ये कहना था कि पहले मरहले के बाद वहाँ उन्होंने ये हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पानी नहीं है, मेयर साहब ने पाबंदी लगाई। तीसरी बात उनका जो गुस्सा उनका है कि आप और मेयर साहब ताखीर से पहुंचे, इसकी क्या वजह थी? अच्छा, मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेरी इतलात हैं उन्होंने सारी रिकॉर्ड दिए है मुझे, और ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में आ जाएगा। 10:16 पे इतला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। वो रिकॉर्ड आएगा, लोग देखें। मेरा अगर कोई नुकसान हुआ होता है ना तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये हमें देखना पड़ेगा। और उसमें उनका कसूर नहीं है, वो अपने सामने अपनी कुल जमा पूंजी जलते हुए देख रहे हैं, वो तो हर एक को कहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि वो नंबर 1 ये था, पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया गया मुश्किलात क्या थी। मैं नहीं इलैबोरेट करना चाहता। मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे लोगों ने, जिसको भी मेरी जिम्मेदारी वो मेरी है, मैं अपने ऊपर डालता हूँ कि हमें भी पहुंचने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ रहा था कि हम चाहे वकू तक पहुंच जाए। तीसरी बात मैंने बताया, मैं कराची से बाहर था और मुझे इतना टाइम लगता वापस पहुंचने में, और मैं 3-3:30 बजे पहुंच गया था। और फिर मैंने तकरीबन मेरे ख्याल 6:30 के करीब में उधर आया था। मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनके बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ़्लाइट मिली उसमें वो आए, सुबह फ्लाइट मैं इनसे था राब्ते में। तो अगेन मैं कहता हूँ ये चीज़ ही नहीं है। क्या मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुँचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार हूँ। रात को मैंने बताया, मुझे तकरीबन रात को 11:30 बजे, 11:15 साढ़े 11 बजे के करीब पता चला था। उस वक्त भी मेरी बात हुई, मेरी डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा वो उधर ही था। रात को मेरी उससे बात हुई। मेयर मुझे पता था कराची में नहीं है, मैंने उनके पता पहले डिप्टी मेयर से बात हुई, मेरी कमिश्नर से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सब वहाँ पे मौजूद थे। अगेन लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात हैं वो गलत नहीं है। वो ये चाहते हैं, बोले हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है कि दुख के वक्त में हर एक मेरे साथ खड़ा हो आके, तो मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ, उसमें मैं कह, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की वजूहात थी। अच्छा सीएम साहब, मैं ये बिल्कुल कहूँगा, मेरे पास जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कोई 2004 में 1075 दुकानें, मैं 1077 दुकानें ये भी मैंने बनाया। अच्छा ये बनाई है, वो मुझे 2004 का है ना, 1021 दुकानें इन्होंने सैंक्शन हुई, उस ज़माने की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने की थी। अगेन ये इंक्वायरी में चीज़ें आ जाएंगी कि क्या इतनी करनी चाहिए थी कि नहीं, और अगर कर दी हैं, वो दुकानें होती हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर इंतज़ामात, फायर फाइटिंग के प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। इस तरह के वाक़यात देखते हैं दुनिया में होते हैं, तो तमाम मकतब के लोग एक बीच पे आके लोगों की खिदमत करते हैं, उनकी काम आते हैं। कल रात हमने देखा कुछ ऐसे साथ भी थे जो लोगों को इंतशार की तरफ इशारा दे रहे थे, सियासत। अल्लाह सबको खुश रखे, हिदायत दे। मैं क्या इशारेबाजी नहीं करो ना, बताया करो यार। संजय यार अभी थोड़ा सा इतना ये सामने थे, नजर नहीं आए यार कि हर चीज में
गलती आपकी है जी जी भाई। यार मैं देखिए ना, आई डोंट वांट टू ओपन समथिंग जो खामखा के कि मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इदारे हैं वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि कौन से इदारे हैं जो समझते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। मैं शायद मैं हूँ वो जो भी है वो अपनी खुद करें, बहुत सिंपल बात है। थैंक यू जी। वज़ीर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था वो गलती मेरी किसी इदारे या प्लाजा के शॉपकीपर की भी हो सकती है। ताजरों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कोशिश है मुतासरा ताजरों को फौरी तौर पर कोई जगह दे सकें, और गलती मेरी किसी इदारे या शॉपकीपर की भी हो सकती है। हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट इदारों को लॉन्ग टर्म के लिए तैयार करेंगे।